we will discuss some more about the transformer. Yesterday what we have learnt about some main parts of the transformer, and also we have classified the transformer into form coarse and shell type transformer. Another classification is that transformer can also be classification. I have already told you one classification yesterday is core type and shell type. Another is power transformer and distribution transformer. You got my point? What is power transformer and what is distribution transformer? Second is distribution transformer. Now, how to identify? They are definitely big in size because they have to handle large power. Large power means high voltage and high current. Is it clear? These are being, they have to handle less power. Less power doesn't mean simply the volt ampere. I have already told you the transformer rating is expressed in, transformer power rating is expressed in, smaller unit is volt ampere, bigger, somewhat bigger kVA, kilovolt ampere, and somewhat bigger MVA. Okay, K means kilo, M means mega. These power transformer ratings are in MVA. They have to handle large current and large high voltage, while these distribution transformer ratings are generally in kVA. Now your exercise is that in India these distribution transfer does not mean that they are available in all ratings. एक का भी मिल गया, दो का भी मिल गया, आप तो गिनती शुरू कर देंगे. ठीक है. They are available in particular standard numbers, 10 kVA, 16 kVA, 25 kVA, 63 kVA, 100 kVA. So you have to, your exercise is that you have to find out that the distribution companies provide the transformer in which range of capacity. कौन सी रेंज होती है. ठीक है, वो फिक्स है. 16 kVA तो कुछ तो मैंने बता दिए, अब कुछ आप और पता करेंगे और एक टेबल बनाएंगे. इज इट क्लियर? सो दिस इज द असाइनमेंट फॉर योर मशीन क्लास, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर रेटिंग्स व्हिच आर अवेलेबल इन इंडिया. Is it clear? So power rating is not in kilowatt or megawatt, it is in kVA. Later on I will tell you that why it is in volt ampere only, why it is in watt. किलोवाट और मेगावाट में क्यों नहीं वोल्ट एम्पेयर? वोल्ट एम्पेयर का क्या मतलब हुआ? वोल्ट एम्पेयर किसकी यूनिट होती है बताइए, सर्किट थ्योरी में बताइए. इट इज द यूनिट ऑफ टोटल पावर एस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द सर्किट थ्योरी दैट द टोटल पावर एस इज नथिंग बट P plus minus J Q. What is S? Total power. What is P? Active power. And what is Q? Reactive power. Do you agree or not? What is the unit of total power? What is the unit of total power? Volt ampere. Voltage multiplied by current. What is the unit of active power? Watt. Higher unit is kilowatt and more bigger unit is megawatt. And what is its AC formula? VI cos phi for a single phase circuit. And what is for a three phase circuit? Root 3 VI cos phi. Do you agree or not? Okay. What is Q? What is Q? What is its formula for single phase? VI sin phi. For three phase, root 3 VI sin phi. What is its unit? kVAR. What is the units? Do you agree or not? ठीक है. So we are using which unit for transformer? That is the total power. Is a volt ampere. Higher kilovolt ampere and more higher megavolt ampere. Clear? So this is another classification. Step up and हो गया. हेलो हेलो हेलो, वापस आ गया. हेलो हेलो हेलो, फाइन.
step up and step down transformer. Now what do you mean by step up? So step up means with respect to primary winding. You define step up and step down according to the primary winding. If secondary winding voltage is higher than primary voltage, then we call that transformer as step up. If secondary winding voltage is less than the primary voltage, we call it as a step down transformer. This is clear, and I have already used this word in the last. Hello, when I was explaining about the power flow from generating up to transmission, up to distribution station. Is it clear? Generation voltage is generally how 11 किलोवोल्ट. कितना होता है? और लॉसेस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस वोल्टेज को स्टेप अप करना. तो किसकी सहायता से करेंगे? मान लो आपने 220 किलोवोल्ट पर कर दिया. अब 220 किलोवोल्ट ट्रांसमिट होगा. क्या होगा? ट्रांसमिट होकर कहां आया? हमारे शहर उदयपुर में आया सपोज. लेकिन हमें कितना चाहिए? 220 वोल्ट. कंज्यूमर को अल्टीमेटली कितना चाहिए? 220 वोल्ट. इज इट क्लियर? नॉर्मल कंज्यूमर. इज इट क्लियर? तो क्या होगा? वापस 220 किलो वोल्ट से रिड्यूस करेंगे. तो क्या यूज होंगे? स्टेप डाउन. 220 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट, 33 से 11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट से 440 वोल्ट, और 440 वोल्ट को एक सिंगल ऑफ न्यूट्रल लेकर हमारे घर में कितना आ रहा है? 220. अरे समझ में आया कि नहीं आया? Exactly. तो you got the importance of step up and step down transformer, right from transmission, right from generation passing through transmission up to the distribution consumer end. We are using step up and step down transformer. This is clear or not? Okay. Now after going through the construction and the working detail of the transformer, let us talk about the mathematical part of the transformer. First one is the EMF equation. What is EMF equation? Okay. As I have already told you, now you will definitely ask, what is the schematic diagram of a transformer? सर्किट थ्योरी किस पे चलती है? थ्योरेटिकल एनालिसिस हम सर्किट डायग्राम चाहिए कि नहीं चाहिए? सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मर? सो आई एम गिविंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल द this is the schematic diagram of a single phase transformer. Mind it, so far we are dealing with which transformer? Single phase. Okay, so this is primary coil, or primary winding. This is your secondary coil or secondary winding. This is what? Core. This is what? Core. Is it clear? This is called primary terminals. So what is connected to the primary terminals? An AC source. Is it clear? An AC source or not? Do you agree? Okay. And generally which type of AC source we apply? Sinusoidal. So I am representing by Vm sin omega t. Clear? Okay. What is this? Load terminals. What these two terminals are called? Secondary terminals are? For what purpose secondary terminals are meant? For connecting load. यहां पर हम लोड कनेक्ट करेंगे. लोड कोई भी हो सकता है. आपका पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये सब क्या है? These are your electrical
loads. Resistive load, inductive load, resistive inductive load, resistive capacitive load, resistive inductive capacitive load, connected in series, parallel, anything. You got my point? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम हो गया. ठीक है, सप्लाई कौन सी लगाते हैं हम जनरली? साइनोसाइडल एसी. इज इट क्लियर? सो व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हाट से? as soon as you supply voltage, alternating AC voltage, what will happen? Alternating current will flow, and alternating current will produce what? Alternating flux. It will produce alternating flux or not? Is it clear? So what will happen? According to the Faraday's first law, induced EMF is produced. Are do you agree or not? And what is the formula for the according to Faraday's law? Faraday's first law क्या होता है? E is equal to rate of change of linkage. Rate of change of flux linkage. Now, see, look towards this coil or the primary winding, also towards the secondary winding. What are there? Turns are there or not? Turns are there or not? 1 turn, 2 turn, 3 turn, 4 turn, like this way there can be, let's say N1 turns are there on the primary side. How many turns? N1. Similarly, here also in secondary what we are seeing? Some turns are there. Let the turns are. So according to the Faraday's law, the induced EMF, now mind it, students are generally in confusion that while explaining the transformer action, I told you the induced EMF is produced in the secondary coil. I have told this or not? अरे मैंने बताया था नहीं बताया था? लेकिन आपको मैं एक और चीज बता दूं. Induced EMF is produced in the primary coil also. You got my point? Because flux is changing. You got my point? Flux is changing. Why is it changing? Because we have applied an AC voltage which is producing AC current, and AC current being varying in nature, it will produce a varying flux, and flux is changing in both in primary as well as in secondary. So induced EMF is produced in primary as well as in secondary. You got my point or not? And what will be the value of induced EMF? dN phi by dt. What is N phi? Number of turns multiplied by flux per turn. That is called flux linkage. आपको लोअर क्लास में बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बट इट इज एक्चुअली व्हाट? फ्लक्स लिंकेज. एक टर्न में फाइव हुआ तो एन टर्न में कितना होगा? एन फाइव. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज एंड डी एन फाइव बाय डी टी. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? एवरीबॉडी एग्रीज और नॉट? Now, what will be the shape of the flux produced? कैसा शेप होगा? अरे इतनी देर बोल रहा हूं, साइनोसाइड होगा, क्योंकि हमने वोल्टेज साइनोसाइड. डू यू एग्री और नॉट? बना दिया मैंने साइनोसाइडल. लग रहा है कुछ साइनोसाइडल? ये क्या वैल्यू है? ये क्या है हमारा समय, टाइम. ये क्या फ्लक्स की वैल्यू, और ये क्या मैक्सिमम फ्लक्स फाई एम. अरे है कि नहीं है? डू यू एग्री? अब मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ. इस साइनोसाइडल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ हर्ट्ज. कितनी है? अरे है, ठीक है. यहां कितना था? कितना था?
0. श्योर? एवरीबॉडी एग्रीज? यहां कितना है? कितने समय में हुआ ये? T/2 या T/4? श्योर? लॉक कर दिया जाए? दिस हैपन्स इन क्वार्टर ऑफ द 1/4 ऑफ द टोटल टाइम पीरियड T. डू यू एग्री? अरे सभी समझ रहे हैं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. कैन आई राइट डाउन? एवरीबॉडी एग्रीज? T is equal to 1/f या F is equal to 1/T. ये लर्न इन द लोअर क्लासेस. लिख सकता हूं. अब बताइए, यहां क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट है, n को बाहर ले लिया तो बाहर क्या है? d∅/. अरे आया कि नहीं आया? एग्री? फ्लक्स में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम में कितना चेंज हुआ, यही मतलब हुआ d∅/dt का. फ्लक्स कहां से बढ़ा? 0 से φm. कितना समय लिया उसने? कितना समय लिया? 1/4f. तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया? φm माइनस 0 अपॉन. डू यू एग्री और नॉट? अरे एवरीबॉडी एग्रीज और नॉट? सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? डू यू एग्री? Now this rate of change of flux is the average value. This is the average value. This is what? Average value of EMF induced in the coil. Do you agree? Now you might have learnt a technical term in our circuit theory, form factor. Have you learned form factor? What is that form factor? यस. क्या कहलाता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू. डू यू एग्री और नॉट? ओके. एंड व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर एन साइनोसाइडल वेवफॉर्म? व्हाई वन स्टूडेंट इज स्पीकिंग? एवरीबॉडी शुड नो इट. 1.11. 1.11. The form factor for a sinusoidal waveform, for a waveform it is different. For triangle waveform it will be different. But for sinusoidal waveform the form factor is 1.11. And what is form factor? How you define in general? Ratio of RMS value upon average value. Now I am interested in RMS value. In AC circuits I am generally interested in RMS value. I know average value or not? How much it is? 4 and 5 of. Do you agree or not? So can I calculate RMS value? Multiply average value with 1.11. So RMS EMF RMS will be equal to how much? 1.11 multiplied by what is average value? 4 5 m f into n. Are do you agree or not? Everybody agrees? Okay, so this is the EMF equation for induced EMF either
primary or secondary. So how much will be the induced EMF in primary winding? Let it say be E. This I have shown you. So induced EMF produced in the primary winding is say E1. Say E1. Mind it. How much voltage is here? V. Let's say V1. RMS value say V1. What is here? E1. Is it clear? E1 is what? What is E1? The induced EMF in the primary winding. Similarly, there will be induced EMF in the, let it be represented by E2. Let it be represented by, do you agree or not? So, from our formula, this is the generalized formula we have obtained. In induced EMF in the coil having n turns. So, can anybody tell me what will be the induced EMF in the primary winding? The RMS value of induced EMF. I am writing RMS just for your convenience, but from now onwards I am simply writing E1. Is it clear? Just for your convenience, induced EMF in the primary winding of N1 turns will be how much? You got my point? What will be the induced EMF in the secondary winding? These are the two equations for the induced EMF in the primary and the secondary winding. Do you agree or not? Is it clear? So, from these two equations we define another term called turn ratio. What we define? So, turn ratio is basically ratio of secondary turns over the primary terms. Now if I divide E2 by E1, I will get the same ratio. Is it not or not? Divide equation 2 by 1. Divide equation 2 by 1. What you will get? What you will get? N2 by N1, and which is nothing but E2 by E1. So turn ratio is also equal to. Are you got my point or not? Is it clear? Generally हम क्या करते हैं? टर्न रेशियो डिफाइन करना है तो क्या करेंगे हम? सब E2 by E1. The proper definition is turn ratio defined as number of secondary turns upon number of primary turns, and which comes out to be equal to also the ratio of the induced EMF in the secondary and the primary respectively. You got my point? इसका थोड़ा एक और आगे कदम बढ़ाते हैं. एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या मतलब हुआ? जब मैंने कहा आदर्श ट्रांसफॉर्मर, आदर्श इंसान क्या मतलब हुआ? आदर्श छात्र क्या मतलब हुआ? जो हमेशा क्लासे अटेंड करता है. इज इट क्लियर? बंक नहीं मारता है, झूठ नहीं बोलता है, बहाने नहीं मारता है. ठीक है, क्लास का काम अप टू डेट करता है, लैब का काम एकदम परफेक्ट करता है. वो क्या हुआ? आदर्श छात्र या छात्रा. इज इट क्लियर? तो उसी प्रकार हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या हुआ? जिसमें किसी प्रकार का कोई लॉसेस नहीं. हम चाहते तो यही है. इज इट क्लियर? तो लॉसेस नहीं है, इसका मतलब क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ? जितना इनपुट दूं उतना मुझे इनपुट, जितना मैं पावर दूं उतना मुझे आउटपुट पावर मिले. 40 वॉट दिया इनपुट पावर, आउटपुट में कितना मिले? 100 वॉट दिया तो कितना मिले? यू गॉट माय पॉइंट? जितना मैंने पढ़ाया वो सारा आप एग्जाम में लिख के आ गए.
मार्क्स कितने आने चाहिए, 100 में से 100 या 50 में से 50, मगर ऐसा कारण लॉसेस। तो मिनिमाइज दीज लॉसेस, क्या करो आप, इन लॉसेस को मिनिमाइज करो, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, जैसे सारा ध्यान किस पे केंद्रित करो, ट्रांसफॉर्मर पर। तो बात समझ में आ गई। आइडियल ट्रांसफॉर्मर मीन्स द इनपुट पावर इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। देखिए मैं ये जो बता रहा हूं, मैं आई एम गोइंग टू डिराइव वन मोर थिंग। इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? दैट इज या इसको चलो रहने दो। इनपुट का पावर कितना होगा, टोटल पावर, नॉट रिएक्टिव एक्टिव नहीं पूछा, टोटल पावर V1 इंटू I1। और आउटपुट का कितना होगा, अगर कोई लोड कनेक्टेड है और उसमें I2 करंट फ्लो हुआ तो जस्ट आई एम गिविंग यू द डायग्राम, या यही बना देता हूं। अरे समझ में आया? आइडियल ट्रांसफॉर्मर में कोई लॉसेस नहीं है, तो V1 इज इक्वल टू E1, V1 इज इक्वल टू, सो इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर V1 comes out to be equal to how much? What is V2? Terminal voltage across the load. And what is E2? Induced EMF in the secondary. In ideal transformer there is no losses is there, therefore also अरे समझ में आया कि नहीं आया? डू एग्री? ये चीज समझ में आ गई? मैं किसकी बात कर रहा हूं? आदर्श ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये चीज आ गई आपको, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जैसे यहां वापस यहां आते हैं, आ गए यहां पर, क्या बताया था मैंने यहां पर, इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर कितनी हो गई, V1 I1, और आउटपुट पावर कितनी हो गई, दोनों बराबर होगी। थोड़ा रीअरेंज करो, ये भी कितना आया, इक्वल टू, क्योंकि V2 किसके बराबर है, E2 के, V1 किसके बराबर है, E1 के, तो V2 by V1 क्लियर, एंड ऑल्सो इक्वल टू I1 by I2। तो करंट और इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ध्यान रखना, करंट और इसके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अरे गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो यहां से हमारा क्या आया, हमने पहले बोला टर्न रेशियो क्या होता है, N2 by N1 is equal to comes out to be how much by this equation, and E2 by E1 is also equal to, in ideal transform also equal to, and V2 by V1 is also equal to I1 by I2। तो इसलिए आप ध्यान रखें, आप क्या देख रहे हैं, यहां क्या N2 है, 2 सेकेंडरी,
secondary induced EMF, secondary voltage, terminal voltage, but what is coming? Primary current. नीचे क्या है? Primary turn, primary induced voltage, primary input voltage, secondary current. मतलब करंट और वोल्टेज में साथ साथ चलते हैं, लेकिन दोनों में विपरीतता है, इनवर्स रिलेशनशिप है. वोल्टेज बढ़ेगा और करंट बढ़ेगा ताकि हमारी टोटल पावर कांस्टेंट रहे. तो अगर आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मर में, देखेंगे दो एंड होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी. आगे आप देखेंगे इन्हीं एंड्स को ट्रांसफॉर्मर में एचवी और एलवी कहते हैं. एचवी एंड एंड एचवी टर्मिनल एंड एलवी टर्मिनल. एचवी का क्या मतलब हुआ? हाई वोल्टेज टर्मिनल. एलवी का क्या मतलब हुआ? लो वोल्टेज टर्मिनल. इज इट क्लियर? एक एचवी होगा तो दूसरा क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया कि जनरेशन पे क्या करते हैं हम? अप करते हैं. कितने का वोल्टेज जनरेट होता है? 11 किलो वोल्ट का. उसको आप कितना किया? तो जनरली हम जब क्वेश्चन में लिखते हैं, whenever you will get numerical, you will have this type of description. A 11 किलोवोल्ट बाय 220 किलोवोल्ट ट्रांसफॉर्मर. आगे और बहुत कुछ, पहले हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं. तो जो पहला न्यूमेरिकल वर्ड आ रहा है वोल्टेज का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्राइमरी. वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्राइमरी. और जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंडरी. ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि हम किसको प्राइमरी माने किसको सेकेंडरी माने. फर्स्ट वन इज कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी. नाउ इफ यू कंपेयर दीज टू वोल्टेजेस, दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर. सो दिस इज योर HV टर्मिनल एंड दिस इज योर LV टर्मिनल. यू गॉट माय पॉइंट? अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं. मैं कहना क्या चाहता था, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मर का और इसके अलावा ये तो क्या हुई वोल्टेज रेटिंग, ये क्या हुई धीरे धीरे मैं सारी रेटिंग्स बता रहा हूं. पहले क्या बताई थी आपको? ट्रांसफॉर्मर की पावर रेटिंग किसमें होती है? केवीए या एमवीए में. अब चूंकि मैं तो एक पावर ट्रांसफॉर्मर लिया, लेट्स से इट इज रिटर्न 1 MVA, 11 किलोवोल्ट ऑब्लिक 220 किलोवोल्ट. तो 1 MVA का क्या मतलब हुआ? पावर रेटिंग. नाउ दिस पावर रेटिंग इज एप्लीकेबल टू बोथ प्राइमरी साइड एज वेल एज सेकेंडरी साइड. मान लो मुझे करंट निकाल रहा है, प्राइमरी करंट कितना है, कैसे करोगे? P इज इक्वल टू वी. वेरी गुड. यू नो कितना? 1 MVA. V you know on the primary side how much it is? 11 kilo. Now can you find out I? P divided by V is your I. That will be I1. That will be your I1, which primary current. ठीक है. सेकेंडरी करंट निकाल सकते हैं कैसे? अगेन P डिवाइडेड बाय V. P कौन सा? यही 1 MVA. लेकिन वोल्टेज कौन सा होगा? सेकेंडरी 220 वोल्ट किलो वोल्ट. तो आपका क्या आ जाएगा? सेकेंडरी करंट I2. अब आप क्या पाएंगे? सभी लोग करें, न्यूमेरिकल निकालें इसका आंसर, एम्पियर आंसर दें, कैलकुलेटर से करें. कैलकुलेट. इट इज 1 MVA, 11 किलोवोल्ट ऑब्लिक 220 किलोवोल्ट. So it is very clear 11 kilovolt is primary and kilovolt is secondary. Agree? Power is common to both. How much it is? 1 MVA. So can I find out I1? 1 into 10 raised to the power 6. Why 6? Mega. Is it clear? Divided by 11 into 10 raised to the power 3. How much? Give me the answer. 90 point? Sure?
Very good. 90.9. Now calculate I2. What is I2? What is I2? But what is I2? Secondary current divided by power divided by 220 into 10 raised to the power 3. How much it is coming? 4.5. Okay. Clear? Are do you agree or not? So now this was LV. This was LV terminal. Primary was your LV terminal. How much? In comparison to secondary, primary you can consider as an low voltage. And this was high HV terminal. But now compare current. On HV side you have a large current, while on LV side you have a large current, and on HV side you have a small current. Don't get confused that whenever voltage will be high, you will be getting a higher current. No. In transformer case, on the HV side you have a lesser current, while on LV side you have a higher current. You got my point? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब आपने इससे क्या पता किया? ये डिजाइन में काम आता है. जहां यहां वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज जहां लोअर होगा, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम होगी. इंसुलेशन किस लिए हम करा? ताकि किसी को झटका ना लगे, वो उसको छू नहीं पाए. तो वो किससे डिसाइड होता है? इंसुलेशन लेवल. इंसुलेशन लेवल ऑफ एनी conductor is being decided by the voltage level, by the, so insulation requirement is less but current is high, and high current decide what? Area of cross section. जितना ज्यादा करंट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना, मतलब उतना मोटा वाइंडिंग होगी, इतनी मोटी वाइंडिंग होगी, उतना मोटा वायर होगा. इज इट क्लियर? तो प्राइमरी साइड इंसुलेशन कम है मगर वायर ठीक है, वायर ठीक है, बिकॉज हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा चाहिए. सेकेंडरी साइड वोल्टेज हाई है, इंसुलेशन ज्यादा चाहिए. उसके ऊपर आप देखोगे 220 किलो वोल्ट पे 9 डिस्क लगी हुई है. कितनी लगी? 9 या 12 डिस्क लगी हुई है. जबकि 11 किलो वोल्ट पे केवल 3 डिस्क लगी हुई है या 1 डिस्क लगी हुई है. अगर एक डिस्क माने हम इंसुलेटर की 11 किलो वोल्ट की, तो 11 किलो पे 1 डिस्क लगी हुई है, और इसको अगर डिवाइड करें तो कितना होगा? 20 डिस्क. इज इट क्लियर? तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज मोर इन सेकेंडरी साइड बट करंट इज लेस. थिन वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन रिक्वायरमेंट इज लेस. अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है. हाई वोल्टेज पतला वायर, लो वोल्टेज है वहां, मतलब एक तरफ अगर मैं समझ में आवे तो चमत्कार लगता है. जो हाई वोल्टेज है उसको तो ज्यादा मोटा ताकतवर कंडक्टर होना चाहिए. वहां क्या दिख रहा है? पतला. और जहां पर लो वोल्टेज है वहां पर मोटा वायर. यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी? इज इट क्लियर? बिकॉज प्राइमरी विच इज लो वोल्टेज इज ड्रॉइंग मोर करंट, therefore thick wire, while the secondary which is at higher voltage is drawing less current and therefore thin wire. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बातें? You got my point? Okay. So this is very clear. Time ratio N2 by N1 which is also equal to E2 by E1. और कंक्लूजन है V2 by V1 इज इक्वल टू, और कंक्लूजन क्या है? I1 by I2 फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर. अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बात है? EMF इक्वेशन इज क्लियर. EMF इक्वेशन इज क्लियर फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. टर्न रेशियो इज क्लियर. पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज क्लियर. इन न्यूमेरिकल if it is given this by this voltage, then the first signifies primary voltage and second signifies, and the power rating which is generally in kVA or MVA or also maybe in small terms for volt ampere, it is equally applicable to both primary as well as
ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, the next topic which we will take, the equivalent circuit diagram of a transformer, of an ideal transformer. What is there? What is the heading? The equivalent circuit diagram of an ideal transformer. Though I will cover in the next class, but today I am building the basic things which are required in order to define an ideal transformer. So, somewhat I have already told you what an ideal transformer is. What an ideal transformer is. I am defining this word. Why? Because slowly we have to build the equivalent circuit. The main important topic in your this transformer or in other motor section is how to draw the equivalent circuit. How to draw the equivalent circuit. क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है? एनालिसिस करना है सिस्टम का. एक तरीका क्या हुआ एनालिसिस का? ट्रांसफॉर्म बनाना है, लगा दे कोई भी वाइंडिंग, तेल में डुबा दे, लगा वोल्टेज, फूट गया ट्रांसफॉर्मर, नया ट्राई करते हैं. फिर नया लगाया, थोड़ा बहुत चेंज किया, सप्लाई ऑन, फिर ट्रांसफॉर्मर फूट गया. चलो कोई बात नहीं, करत कर व्यास के जड़मती हो सुझाव. फिर तीसरा एक और एक्सपेरिमेंट, पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दोगे. इज इट क्लियर? तो राइट अप्रोच क्या है इंजीनियरिंग की या किसी भी सिस्टम को बनाए कि पहले आप उसको थ्योरेटिकली डिजाइन करें. उसको आप थ्योरेटिकली डिजाइन करें कि अगर ये होगा तो ऐसा हो, इतना करंट बहेगा, इतना करंट बहेगा तो मुझे इतना वायर चाहिए, इतना मोटा वायर चाहिए, इतना वोल्टेज चाहिए तो इसको इंसुलेशन इतना चाहिए, इतनी वाइंडिंग्स इतनी भारी होगी तो उसमें इतना बड़ा टैंक चाहिए, उस टैंक में इतना ऑयल चाहिए ताकि वो कूल रह सके. ये सारी चीजें आपको पहले थ्योरेटिकली पता करनी पड़ेगी. और वो कब पता करेंगे? जब आपके पास एनालिसिस टूल होंगे उसके रिलेटेड. होंगे कि नहीं होंगे? कभी आप कहते हो ना सर हमें क्यों पढ़ रहे, सीधे हमें ट्रांसफॉर्मर पे ऊपर चढ़ा दो ना. इज इट क्लियर? हम तो पाना और वो लेकर और खोल के ना साहब ये तेल में एक डुबकी लगा देंगे हम तो. इज इट क्लियर? ठीक है. दैट यू विल लर्न विद इन 1 day, 1 or 2 days. In fact, I am also of the view that should be also there side by side in a parallel, but that is also important. That is for how to design a transformer. आपका मन गए बाजार में गए, एक देना कोर लेकर आ गए, ठोका पिकी कर दी, कोई मालूम नहीं कितनी लेंथ की लगानी, क्या करनी, वार्निश लगाना नहीं लगा दिया, वाइंडिंग लगाई, वार्निश नहीं लगाई, जल गया. चलो वार्निश का भी मालूम पड़ गया, वोल्टेज लगाया, पतला वायर लगा दिया, जल गया. सो दिस शुड बी डिजाइन्ड बिफोर जंपिंग इनटू द इट्स प्रैक्टिकल फॉर्म. इज इट क्लियर? आपके प्रैक्टिकल फॉर्म पहले से, लेकिन इसके पहले आपके टूल्स होने चाहिए कि यार मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्मर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, उसमें क्या दिखाऊं, क्या क्या हो सकता है. वाइंडिंग है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस. वाइंडिंग है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस. कैसे दिखाऊं मैं रेजिस्टेंस? ठीक है. और रेजिस्टेंस के साथ क्या क्या हो सकता है? मैंने बताया लीकेज फ्लक्स होता है. होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? लीकेज फ्लक्स क्या होता है? जो फ्लक्स केवल जिस वाइंडिंग में प्रोड्यूस किया उसी को लिंक करता है, वो क्या है? लीकेज फ्लक्स. और जो दोनों वाइंडिंग को लिंक करता है वो क्या कहलाता है? मेन फ्लक्स. वो क्या कहलाता है? मेन फ्लक्स. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो अब हमें ये सारी चीजें बातों की खोज करनी कि ट्रांसफॉर्मर की इस वाइंडिंग में और कोर में क्या क्या पैरामीटर्स, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स छुपे हुए हैं, और फिर हम उनको क्लब करेंगे. क्लब करके एक सर्किट बनेगा, उसको हम नाम क्या देंगे?
इक्विवेलेंट सर्किट। वैसे ट्रांसफार्मर को मैंने डायग्राम बताया, दो कॉइल बना के बीच में कोर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो क्या हुआ स्कीमेटिक डायग्राम देखने के लिए, आपको कहीं ये लगा हुआ हो, यहां क्या लगा हुआ ट्रांसफार्मर, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। तो शुरुआत करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर से। कहां से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे धीरे, फिर बाद में, ठीक है, शुरुआत में आते हो, बचपन में टीचर पढ़ाते हैं झूठ मत बोलो, ठीक है, माता पिता को प्रणाम किया करो, उनका आदर किया करो, सम्मान किया करो, टीचर का सम्मान किया करो, ठीक है। लेकिन ऐसा करते थोड़ी है, मेरे बाहर जाते ही मेरे को गाली दोगे आप लोग, इज इट क्लियर, ठीक है। तो पहले शुरुआत में बच्चों को आदर्श की बातें सिखाई जाती, तो हम भी ट्रांसफार्मर के आदर्श की बातें करेंगे। व्हाट इज ए आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे, तो जो पहला पॉइंट है, नो लॉसेस, नो लॉसेस। तो अब लॉसेस किसके कारण होते हैं, सीधे उसमें मैंने बोल दिया था, आपने कह दिया। सबसे पहले रेजिस्टेंस के कारण, वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर में हम क्या मानेंगे, कितनी वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी और R1 भी 0 और भाई आदर्श की बातें लग रही नहीं लग रही, सुपर कंडक्टर, जबकि वास्तव में सुपर कंडक्टर नहीं, वो क्या है, धीरे कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टर मीन्स विच हैज एन 0 रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस नहीं तो कोई लॉसेस भी नहीं। दूसरा, द लीकेज रिएक्टेंस ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 0। इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइमरी जो फ्लक्स बना रहा है वो सारा का सारा किसको लिंक कर रहा है, और सेकेंडरी जो फ्लक्स बना रहा है सारा का सारा किसको लिंक कर रहा है, अपने पास कुछ नहीं रख रहा है। ऐसा होता है क्या, ठीक है। लेकिन ये सब बातें कौन सी है, आइडियल, ओके। नो लॉसेस मींस रेजिस्टेंस इज 0 एंड लीकेज, जो फ्लक्स होता है ना, लीकेज फ्लक्स मैंने बताया था, उसको आगे चलकर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लीकेज रिएक्टेंस। एक्स किसका साइन है, रिएक्टेंस का, आर किसका साइन है, रेजिस्टेंस का, अरे है कि नहीं है, ठीक है। तो इस लीकेज रिएक्टेंस को हम क्या मानेंगे जी, अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा, so the first, or you can make 2 points here of the first point, resistance is assumed to be 0, leakage flux and thereby corresponding leakage reactance is also assumed to be 0। वाइंडिंग के बारे में क्लियर हो गया। तीसरा, permeability of the core is assumed to be infinite, is it clear। भाई वो फ्लक्स ले जाएगी ना वहां से प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो उसकी परमेबिलिटी हम क्या मानेंगे, इनफाइनाइट। जितना फ्लक्स आएगा सारा का सारा सेकेंडरी में वो दे देगा, इज इट क्लियर। देयर इज नो लॉसेस इन द कोर, देयर इज नो लॉसेस इन द कोर। और कोर में कौन से लॉस होते हैं, अब बोलो, एडी करंट लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज एंड, so no eddy current loss and no hysteresis loss in the transformer। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आदर्श आदर्श होता है, इज इट क्लियर, बात समझ में। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले। तीसरा पॉइंट, नो एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉस। तो एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस ये दोनों क्लब होकर एक दूसरे लॉसेस, एक सिंगल लॉसेस के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम कहते हैं आयरन लॉस। क्या कहते हैं,
क्योंकि पुरानी कोर कौन सी यूज होती थी? आयरन। आजकल कौन सी होती है? कोल्ड रोल सिलिकॉन स्टील। ठीक है, लेकिन हम उसको नाम क्या देते हैं? स्टील भी। जो आप घरों में स्टील के बर्तनों में खाना खाते हो ना, खाते हो स्टील के बर्तनों में खाते हो कि सोने के बर्तनों में? रॉयल लोग हो आप लोग, मैं क्या पता सोना और चांदी के बर्तनों में खाते होंगे। इज इट क्लियर? स्टील के बर्तनों में खाते हो हैं कि नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी पास प्लास्टिक और कागज के? तो स्टील क्या है? स्टील इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन में फॉस्फोरस मिला के उस प्रकार स्टील के बर्तन हम क्यों यूज करते हैं बताओ? जानते हो उसका रीजन? बिकॉज इट इज केमिकली नॉन रिएक्टिव। ठीक है, आप इसमें दाल डाल दो तो उसमें यूं नहीं कि वो उसका स्टील का जो फॉस्फोरस है उसमें मिल जाएगा। एल्यूमिनियम में मिलता है, इसलिए एल्यूमिनियम के कुकर आर नॉट एडवाइजेबल। ओके, मगर उसमें स्टीम जल्दी, वो जो हीट का कंडक्टर अच्छा होता है तो स्टीम जल्दी बन जाती है। बट उसका नुकसान है कि साथ साथ आपके जो सब्जी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, उसमें धीरे धीरे उसमें मिंगल हो जाता है। दैट मे कॉज सम डिजीज इन द फ्यूचर। सो जनरली कुकर इज रिकमेंडेड आइदर ऑफ स्टील और ब्रास, बट ब्रास इज कॉस्टली, सो यू गो फॉर जनरली स्टील। ठीक है, कुछ किचन की भी बातें बता दी मैंने आपको, आगे घर में काम आएगी। ठीक है, जब घर बसाओगे तो कुकर भी खरीदना पड़ेगा। इसलिए तो मेरी बात याद रहेगी कि सर कौन सा कुकर खरीदें। You got my point? So, some more point we will discuss about the ideal transformer, and then we'll proceed to the equivalent circuit of the transformer. Is it clear or not? So that's all for today, and in the next class we will again start with new topic.